پریز گاڈ، گڈ ایوننگ. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے. آج ایک اور اہم سوال کے ساتھ، ایک بڑی اہم ڈسکشن کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. دراصل بہت سے دوستوں نے یہ کویشچن کیا ہے اور انہوں نے اس کویشچن کے ساتھ اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ شاید یہ بائبل مقدس کے اندر کوئی تضاد ہے یا کوئی کانٹراڈکشنز ہے. تو اس سوال کو لہٰذا واضح کیا جائے، اس سوال کے اوپر بات چیت کی جائے. میں چاہوں گا کہ ہم اس کویشچن کو پہلے پڑھیں اور سمجھیں اور پھر ہم اس کے اوپر بات کریں. تو کویشچن دراصل یہ تھا کہ دو انجیلی بیان ہے، متی 27 باب اور اس کی 28 آیت، اور مرکز 15 باب اور اس کی 17 آیت، اور یوحنا 19 باب اس کی 2 آیت. ان حوالہ جات میں یسوع مسیح کو جو چوگا پہنایا گیا صلیب دینے سے پہلے، اس کا جو رنگ ہے، جو کلر ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ متی جو ہے اس کا کلر ہمیں کرمزی بتا رہا ہے، جبکہ مرکز اور یوحنا جو ہے اس کا رنگ ہمیں ارغوانی بتاتے ہیں. تو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ اصل میں اس چوگا کا رنگ جو یسوع مسیح کو پہنایا گیا تھا، اس کا اصل رنگ جو ہے وہ کیا تھا. تو اس تضاد کے یا اس اعتراض کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کرمزی رنگ کیا ہے اور ارغوانی رنگ جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کے لیے میں کچھ ایکسپلینیشنز ہیں، کچھ ڈیفینیشنز ہیں، کچھ ریسرچ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے ارغوانی جو کلر ہے اس کے لیے انگلش میں NIV جو ترجمہ ہے اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے ارغوانی رنگ کے لیے وہ ہے جی کرمسن. اور کرمسن کو جب میں نے جا کے اردو ڈکشنری میں اس کا ترجمہ جب دیکھا ہے، فیروز اللغات ڈکشنری میں، تو مجھے اس کا ترجمہ جو ملا ہے کرمسن کا وہ ہے ڈیپ ریڈ. اور پھر جب کرمزی رنگ کو ہم دیکھتے ہیں تو کرمزی کے لیے جو انگلش میں ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے اسکارلیٹ، اور اس کا جو ترجمہ ہے اردو میں وہ ہے جی برائٹ ریڈ. یعنی کہ ان دونوں کا جو میننگ ہے، کرمسن اور اسکارلیٹ، یہ دونوں کلر جو ہیں ان دونوں کا جو ترجمہ ہے انگلش سے اردو میں، جو ان کا میننگ ہے، جو معنی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے برائٹ ریڈ اور ڈیپ ریڈ. یعنی کہ دونوں ہی جو کرمزی ہے اور ارغوانی ہے، ان دونوں کا جو میننگ ہے، جو ان دونوں کی کلر کمبینیشن ہے یا اس کا جو کلر ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ریڈ. تو اب ہم تھوڑی سی اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، اس کی ایکسپلینیشن میں جائیں گے کہ ارغوانی اور کرمزی رنگ جو ہے اصل میں ہیں کیا. اور انگلش میں نے بتا دی ہے دونوں کی. اب ہم چلیں گے ارغوانی رنگ کو عبرانی میں کہتے ہیں جی ارغمان، اور اس کا مطلب ہے سرخ، گہرا سرخ. اور یہ خوبصورت رنگ کا، ایک خوبصورت پھول کا بھی رنگ ہے ارغوانی. اور بائبل مقدس میں اس کا کئی جگہ پر ذکر جو ہے وہ آتا ہے. اگر آپ چاہیں تو حوالہ جات نوٹ کر سکتے ہیں. وہ ہے جی خروج 45 باب اس کی 4 آیت، 46 باب اور اس کی 36 آیت، قضات کی کتاب 8 باب اس کی 26 آیت، اور پہلا تواریخ اس کا دوسرا باب 14ویں آیت، اور آستر کی کتاب پہلا باب 6 آیت اور 8واں باب 15 آیت. اور غزل الغزلات کی کتاب ہے، اس کا تیسرا باب ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے. مرکز کی جو انجیل ہے اس میں اس کو کرمزی رنگ بیان کیا گیا ہے، لیکن چونکہ میں نے بتا دیا ہے کہ ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ڈیپ ریڈ، اور عبرانی میں بھی اس کا مطلب سرخ رنگ ہے. چونکہ یہ ایک شاہی رنگ جو ہے، ایک رائل کلر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. اور ارغوانی لال اور نیلے رنگ کا لباس جو ہے کاہنوں کو بھی دیا جاتا تھا پہننے کے لیے. لیکن ارغوانی رنگ جو ہے وہ خاص طور پہ شاہی کلر ہے، ایک رائل کلر ہے جو بادشاہ پہنتے تھے. تو اس لیے چونکہ یسوع مسیح کو یہودیوں کا بادشاہ کہا گیا، اور اس لیے اسے جو ہے ارغوانی رنگ کی پوشاک جو ہے وہ پہنائی گئی، کیونکہ اس کو ٹھٹھوں میں اڑانے کے لیے انہوں نے کہا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو اس کو پوشاک جو ہے وہ بادشاہوں والی ارغوانی رنگ کی پوشاک جو ہے اس کو پہنائی جانی چاہیے، کیونکہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. تو اب ہم چلتے ہیں جی کرمزی رنگ کی طرف. تو کرمزی رنگ جو ہے
इसको इंग्लिश में जैसा मैंने बताया इसको स्कारलेट कहा जाता है, और स्कारलेट का मतलब भी सुर्ख रंग है। और सुर्ख ये जो किरमजी रंग है, ये एक कीड़ा जो फ़लस्तीन में बलूत के दरख्त पर पाया जाता है और उससे हासिल किया जाता है, उस कीड़े से। और इस कीड़े को अरबी ज़ुबान में किरमज कहते हैं। इसी मुनासबत से चूँकि ये इसकी कीड़े किरमज से हासिल किया जाता है, इसलिए इस रंग को किरमजी रंग जो है वो कहा जाता है। और ये रंग जो है एक सिप्पी के कीड़े से भी बनाया जाता है, और चूँकि ये बहुत महंगा रंग होता है, इसलिए वो कपड़े जो से रंगे जाते हैं वो अमीरी और शाही रुतबा की अलामत है। और चूँकि ये रंग चूँकि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, तो मोस्टली जो बादशाह हैं, जो अमीर लोग हैं, जो शाही तबका है, वही इस रंग से रंगे हुए कपड़े जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मंदरजा बाला सारी डेफिनेशन से हमने इस बात को जान लिया है कि ये जो किरमजी रंग है और अर्गवानी रंग है, ये असल में सुर्ख रंग की दोनों किस्में हैं। इन दोनों का मतलब जो है वो सुर्ख ही है, ब्राइट रेड है और डीप रेड है। इन दोनों में कोई तजाद या कोई तराज या कोई मसला नहीं है। इन दोनों का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो एक ही है, और वो रेड है यानी सुर्ख है। और एक सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो ये भी है कि हो सकता है उस चोगे के अंदर, जो चोगा यीशु मसीह को पहनाया गया है, उस चोगे के अंदर जो है वो दोनों कलर मौजूद हो, अर्गवानी भी और किरमजी भी। लेकिन मत्ती ने जो है किरमजी रंग पर ज़्यादा जोर दिया, और मरकस ने और यूहन्ना ने जो है अर्गवानी रंग पर ज़्यादा जोर दिया। माइट बी पॉसिबल, और पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि उस चोगा के अंदर दोनों कलर जो है, दोनों रंग जो है वो मौजूद हों। तो मत्ती ने किरमजी रंग देखा और मरकस और यूहन्ना ने अर्गवानी रंग जो है वो ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट जो है वो जोर दिया। अब हम देखते हैं कि वाई जीसस को जो है ये किरमजी और अर्गवानी रंग जो है वो क्यों पहनाया गया और उसका चोगा क्यों पहनाया गया। अब हम अपने लिए इसमें से लाइफ लेसन जो है वो लेंगे कि हमारी ज़िंदगी पे उस रंग का, उस चोगे का जो है इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसका असर है, वो क्या है। ये जो शाही चोगा है, चूँकि ये चोगा जो है वो शाही चोगे की नकल थी। ये चोगा आज हमें क्या पैगाम दे रहा है, वी हैव टू सी, हमें इस पैगाम को भी देखना है कि इस चोगे से, इस कलर से, दोनों जो कलर्स हैं स्कारलेट है और क्रिम्सन जो है, इससे हमारी ज़िंदगी में क्या लाइफ लेसन है, हमारी लाइफ के ऊपर इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, वो हम देखें। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हम एक हवाला जो है वो देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हवाला जो है इन दोनों कलर्स के बहुत ज़्यादा करीबी है, और वो हवाला है जी यशायाह पहला बाब उसकी 18वीं आयत। लिखा है कि अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ़ की मानत सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी उनकी मानत उजले हो जाएंगे। तो ये बड़ा इससे बड़ी मुनासबत से ये हवाला जो है वो है कि इसके हमारे जो गुनाह हैं, हमारे जो सिंस हैं, उनकी जो कलर है वो स्कारलेट है, या उनका जो कलर है वो क्रिम्सन है। इसके लिए मैंने तीन तर्जमे जो हैं वो मैंने सिलेक्ट किए हैं। एक है गुड न्यूज़ NIV और एक है किंग जेम्स। मैं इस हवाला को यशायाह पहला बाब 18वीं आयत को इन तीनों तराजुम में पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले है जी गुड न्यूज़। लिखा है, द लॉर्ड सेज नाउ लेट्स सेटल द मैटर, यू आर स्टेन्ड रेड विद सिन। यानी कि तेरे जो गुनाह हैं वो रेड हैं, किसकी तरह, किरमस की तरह। विद बट आई विल वॉश यू एज क्लीन एज स्नो, ऑल्दो योर स्टेन्स आर डीप रेड। कि तेरे जो गुनाह हैं, तेरे जो धब्बे हैं गुनाह के, जो स्टेन्स हैं वो कैसे हैं जी, डीप रेड हैं, किरमस की तरह, सॉरी अर्गवान की तरह डीप रेड। यू विल बी एज वाइट एज वुल। ठीक है जी। तो गुड न्यूज़ जो तर्जमा है उसने किरमजी को और अर्गवानी को उसको ट्रांसलेट जो किया है वो है जी रेड, और दूसरे को ट्रांसलेट किया है डीप रेड। अब मैं NIV तर्जमा आपके साथ सामने पढ़ना चाहूँगा। कम नाउ लेट अस रीजन टुगेदर सेज द लॉर्ड, दो योर सिंस आर लाइक स्कारलेट दे शैल बी एज वाइट एज स्नो, दो दे आर रेड एज क्रिम्सन दे शैल बी लाइक वुल। तो
NIV ने भी इसका जो तर्जमा किया है वो स्कारलेट है और क्रिम्सन है, यानी कि ब्राइट रेड और डीप रेड, यानी कि दोनों में एक ही तर्जमा और एक ही उसकी ट्रांसलेशन जो है उसका मायने जो है वो वाज़ेह होगा, और वो है जी सुर्ख रंग, गहरा सुर्ख रंग और चमकदार सुर्ख रंग। अब हम आएंगे किंग जेम्स की तरफ। किंग जेम्स तर्जमा जो है वो यूँ है, कम नाउ एंड लेट अस रीजन टुगेदर सेथ द लॉर्ड, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow, though they be red like crimson, they shall be as wool। तो किंग जेम्स ने भी, किंग जेम्स जो तर्जमा है वहाँ भी दोनों वर्ड जो हैं अर्गवानी और किरमजी, इन दोनों के लिए स्कारलेट और क्रिम्सन यूज़ हुए हैं, और इन दोनों का मतलब मैं बारहा बता चुका हूँ कि ब्राइट रेड है और डीप रेड है। जो यसाया है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, यसाया नबी, कि हमारे गुनाह जो है वो किरमजी हैं और हमारे गुनाह जो है अर्गवानी है, और इन्हीं दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन जो है, इन्हीं दोनों कलर्स का चोगा जो है वो जीसस क्राइस्ट को पहनाया गया, यानी कि हमारे जो गुनाह हैं वो उसके ऊपर लादे गए, किरमजी रंग की तरह के हैं और अर्गवानी रंग की तरह के हैं, और वो दोनों गुनाह, दोनों कलर्स के जो गुनाह हैं, जो भारी डीप रेड हैं, जो बड़े गहरे गुनाह हैं, उनका कलर बड़ा गहरा है, और वो एक चोगे के तरह यीशु मसीह पर लादे गए, और यीशु मसीह को वो चोगा पहनाया गया और उसे ठट्ठों में उड़ाया गया। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक गुड न्यूज़ भी है, और वो गुड न्यूज़ क्या है? अगर हम मरकस 9 बाब उसकी 3री आयत का मुताला करें तो वो ये है, और उसकी पोशाक ऐसी नौरानी और सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और अगर हम यसाया के इसी हवाले को पहले बाब 18वीं आयत के दूसरे हिस्से को वागौर पढ़ें तो लिखा है कि और अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमज की मानद हों वो बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे, और अगर चाहे वो अर्गवान की तरह सुर्ख हों तो वो ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। तो मरकस इस बात को वाज़े कर रहा है कि जो पोशाक उसको पहनाई गई थी वो अर्गवानी है और किरमजी है, लेकिन जब वो अपने जलाल में आया है तो उसकी पोशाक जो है वो सफ़ेद हो गई है, और हमारे गुनाहों को धोकर उसने जो है उनको सफ़ेद कर दिया है। कोई दुनिया में कोई धोबी जो है वो इस तरह सफ़ेद नहीं कर सकता जैसे यीशु मसीह की पोशाक हो गई। और यसाया भी वही कह रहा है कि खुदा जो है वो हमारे गुनाहों को सफ़ेद कर देगा, उनकी मानद और उजले कर देगा। इसी तरह अगर हम इसकी और डेफिनेशंस में जाएं तो दानियल 7 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम अलियाम बैठ गया और उसका लिबास बर्फ़ सा सफ़ेद था। तो जीसस क्राइस्ट ने हमारे जो गुनाह हैं वो अर्गवानी गुनाह थे या किरमजी गुनाह थे, वो उठाए और उन्हें धोकर अपनी पोशाक की तरह बिल्कुल सफ़ेद और उजले कर दिया है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग आज जो बाइबल मुक़द्दस पे एतराज़ उठाते हैं, बाइबल मुक़द्दस के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें सिर्फ थोड़ी सी स्टडी की ज़रूरत है, थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है। तो इस बयान में कोई एतराज़, कोई तज़ाद नहीं है कि उसकी पोशाक का कलर क्या था, किरमजी था या अर्गवानी था। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस बात को पूरी डिटेल के साथ आपको समझा सकूं कि स्कारलेट और क्रिम्सन दोनों एक ही कलर्स हैं। लिखने में कोई गलती नहीं है या बयान करने में कोई गलती नहीं है, सिर्फ समझने में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में हमारी प्रॉब्लम है। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस को बड़े गौर से ध्यान से पढ़ें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें, तो हमारे बहुत से जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे और हम खुदा के कलाम को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे। खुदावंद आप सबको कसरत से ब्लेस करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई या नहीं आती, आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर अवेलेबल होगा और मेरा फेसबुक अकाउंट आपके सामने है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ कर सकते हैं। तो हम हर वक्त अवेलेबल हैं आपके क्वेश्चंस के लिए, खुदा के कलाम को सिखाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सब खुदा के कलाम को अच्छी तरह समझें और अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। खुदावंद आप सबको कसरत से ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहे, आबाद रहें। आमीन।